عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل تصویروں کے حوالے سے تنقیدی تبصرے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے مکسڈ مارشل آرٹ کے چیمپئن خبیب کے بارے میں جو بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، میں ان کی تفصیلات رکھوں گا۔ تلنگانہ کی حکومت نے 7 تاریخی مساجد کو آباد کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی کو ایک چیلنج کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ کشمیر میں محبوبہ مفتی کے بیان کو لے کر کے کچھ بی جے پی کارکنان غصے میں نظر آئے اور ترنگا لہرانے کی کوشش کی ہے لال چوک میں، وہ بھی تفصیلات سے رکھتے ہوئے زرعی قانون کے خلاف وجے دشمی پر پی ایم مودی، اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کا مجسمہ اور ان کی جو ہے پتلے نظر آتش کر دیے گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین، میں ساری چیزیں تفصیلات سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت لگاتار ہماری امدادی کارروائی اور راحت رسانی کا جو کام ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی بستی میں جا کر کے آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہمیں موصول ہو رہا ہے تعاون، اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت متاثرہ افراد ہیں فلڈ میں اور سیلاب کے لے کر کے ان کے گھروں تک بھی پہنچایا جائے، اور جہاں گھروں تک نہیں پہنچایا جا سکتا، راستوں میں پانی ہونے کی وجہ سے یا نالیاں ٹوٹ جانے کی وجہ سے، ان کو کسی ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم لوگ جو ہے یہ راشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم لگاتار گزشتہ 4-5 دنوں سے یہاں پر صبح شام کام کر رہی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور یہ سارے جو ہم لوگ راحت رسانی امدادی کام پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب کی سب آپ ہی لوگوں کی جانب سے اور سیدھی بات کے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ناظرین ہیں، ان لوگوں کی تعاون سے ہی ہم لوگ یہ امداد وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور ابھی کچھ اور دن ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں تک پہنچنا ہے، یہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ باقی وہ لوگ جو ابھی بھی ارادہ رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نیچے تفصیلات ہے، وہاں پر جا کر کے وہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے اس وقت یہاں پر، اور حالات بہت خراب ہیں، جیسا کہ میں نے کل اپنے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ لیکن کام ابھی تک سیدھی بات فاؤنڈیشن کا یہاں پر لگاتار جاری ہے۔ ہر دن صبح اور شام میں جو ہے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، پیکٹ بنائے جاتے ہیں اور پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب، اور میں آپ کو سب سے پہلے تلنگانہ لے چلنا چاہتا ہوں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں ریاست کی 7 تاریخی مساجد کو آباد کروایا ہے۔ ان کی ہدایت پر ریاستی وقف بورڈ نے شہر حیض آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں 6 قطب شاہی مساجد کو آباد کروایا، جبکہ ضلع میدک میں قدیم اور تاریخی مساجد کی مرمت کروا کر اسے دوبارہ آباد کروانے کی کوشش ہوئی ہے۔ ان مساجد میں اگر تذکرہ کیا جائے تو قطب شاہی مسجد ہے جو خانہ پیٹ یعنی ہائی ٹیک سٹی کے قریب جو واقع ہے، اسی طرح قطب شاہی مسجد قلعہ گولکنڈہ جو قلعے کے عقبی حصے میں واقع مسجد ہے، اور قطب شاہی مسجد آدی بٹلہ ضلع رنگا ریڈی میں جو واقع ہے، اور قطب شاہی مسجد ابراہیم پٹنم میں جو واقع ہے، قطب شاہی مسجد مالکان چیرو گچی باولی میں اور حیدرآباد جو ہے، اور قطب شاہی مسجد مہیشورم اور قدیم مسجد المعروف بورکی جو ضلع میڈک میں شامل ہیں۔ ان تمام مساجد کو جہاں کے وقف بورڈ کی جانب سے جو ہے حکومت کے جو ہے فرمان پر یہاں پر جو آباد کی گئی ہے، پہلے اس کو درست کرایا گیا۔ چونکہ مساجد کے سلسلے میں حکومت نے قدم اٹھایا ہے تو اس عمل کو جو ہے اس وقت سراہنے کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے، اور سراہنی ہونی چاہیے کہ حکومت کی جانب سے اس طرح سے جو ہے فیصلے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، آئیے ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی کو چیلنج کیا ہے۔ جی ہاں، دادر میں واقع آڈیٹوریم میں شیو سینا کی سالانہ دسہرہ ریلی میں اتوار کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی کو ان کی 11 ماہ پرانی حکومت کو گرانے کا چیلنج کیا۔
उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी को मुल्क पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप बिहार में मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन का वादा करते हैं, तो क्या फिर दीगर रियासतों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हुए हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं, लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। आप लोग मरकज में बैठे हुए इस तरह कहते हुए बराह रास्त उन्होंने तनकीद की है मरकजी हुकूमत को। अदाकारा कंगना रनावत पर भी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर निशाना साधते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं और शहर को पीओके यानी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बोलकर उसको गाली देते हैं। ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लग रहे इल्जामात पर खामोशी तोड़ते हुए कहा, बिहार के बेटे को इंसाफ के लिए शोर मचा रहे लोग महाराष्ट्र के बेटे की किरदारकशी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी निज़ाम पर दोबारा गौर करने का वक्त आ गया है और अगर ज़रूरत हो तो इसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि रियासतों को इससे फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। बैगम नाज़रीन, दो अहम तरीन उन्वानात थे कल। एक तो बीजेपी की हुकूमत को बराह रास्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 11 महीने की जो उनकी पुरानी हुकूमत है उसको तोड़ करके बताएं। और दूसरी जानिब उन्होंने कंगना रनावत को भी आड़े हाथों लिया, जिसने जो है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हुए पूरी अपनी शोहरत हासिल की। अब जो है मुंबई हुकूमत को ही निशाने पर ली हुई है और मुंबई को अलग अलग तर्ज पर वो जो है। इसके जवाब में भी कंगना रनावत का भी एक ताज़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। बहरकैफ एक अलग ही खबरें हैं, अब इसमें क्या जाना हम लोगों को, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त जो मशहूर लोग होते हैं, जब उनके यहाँ से कोई बयान जारी होता है तो फिर वो सुर्खियाँ बटोरने लगते हैं। उद्धव ठाकरे ने बराह रास्त बीजेपी को चैलेंज भी कर दिया और कहा कि जो इस तरह दूसरी जगहों पर हुकूमत गिराने की कोशिशें होती हैं, महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत को गिरा करके दिखाएं, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र हुकूमत क्या है। उन्होंने बराह रास्त बीजेपी को भी इस वक्त चैलेंज किया है। बैकअप नाज़रीन, आइए आप ही के मुतालिबे पर एक कुछ और तफसीलात लेकर के आए हैं खुबैब नूरमागोमदोव के बारे में, जो हाल ही में उन्होंने अपने जो मुकाबले हुए थे उसमें जीत भी हासिल की थी आलमी चैम्पियनशिप में, और उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड होने का भी ऐलान किया था। ये गुज़िश्ता कई सालों से वैसे भी मशहूर हैं एक मामले को लेकर के, मैं वो सारी तफसीलात रखूँ। 32 साल रूसी खिलाड़ी खुबैब नूरमागोमदोव इनका नाम है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 2008 में किया था। इन्होंने अपने कैरियर में 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमाम मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले लाइटवेट आलमी चैंपियन खुबैब नूरमागोमदोव का कैरियर अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देने के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया है। खुबैब ने हफ्ते को अबू धाबी में अपने कैरियर की आखिरी फाइट में अमरीकी खिलाड़ी जस्टिन गेचे को शिकस्त दी और रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि यूएफसी में उनकी आखिरी फाइट थी। यूएफसी लाइटवेट चैंपियन खुबैब नूरमागोमदोव ने फाइट के दूसरे राउंड में ही जस्टिन गेचे को बेहोश कर दिया था। यूं वो यूएफसी 254 में अपने लाइटवेट टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में भी कामयाब रहे। नाज़रीन, 32 साल रूसी खिलाड़ी खुबैब नूरमागोमदोव ने अपने कैरियर का आगाज सन 2008 में किया था। तब से रिटायरमेंट के ऐलान तक उन्हें एक मर्तबा भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कैरियर के दौरान 29 फाइट्स की, जिनमें से 13 यूएफसी फाइट्स में उन्होंने मुसलसल कामयाबी हासिल की और साबिक मिडलवेट चैंपियन एडरसन सिल्वा का 3 मरतबा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। केचे को शिकस्त दो चार करने के फौरी बाद अपने ग्लोव्स उतारते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी वालिदा से वादा कर चुके थे कि ये उनकी कैरियर की आखिरी फाइट होगी। उनके बकौल मुझे वालिदा से किया गया वादा पूरा करना है और उन्होंने पूरा कर दिखाया। नूरमागोमदोव ने बताया कि उन्होंने केचे के खिलाफ मैच लड़ने का फैसला करने से कबल मुसलसल 3 रोज तक अपनी वालिदा से बात की थी। पिछले 12 सालों तक नाकाबिल शिकस्त रहने वाले खुबैब नूरमागोमदोव के वालिद और कोच अब्दुल मुनाफ नूरमागोमदोव रवां बरस जुलाई में इंतकाल कर गए थे। खुबैब का कहना था कि वालिद के बगैर फाइट करना कितना मुश्किल है ये मैं ही जानता हूं। खुबैब के कैरियर में 7 अक्टूबर 2018 का दिन अहम साबित हुआ, जब उन्होंने आलमी शोहरत याफ्ता आयरिश खिलाड़ी काजर मैग्रेगर को शिकस्त दी और यूएफसी लाइटवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। इस फाइट के आखिर में होने वाले तनाज़े के सबब खुबैब को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने क्यों हमला किया था उसकी भी वजाहत की थी। उसी वक्त वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज में जाने पहचाने लगे खुबैब और उनके उस अमल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में छाए रहे पूरी दुनिया में। फाइट के इख्तिताम पर मैग्रेगर की टीम की जानिब से एक नामुनासिब जुमला कसा गया था, जिस पर खुबैब गुस्से में आकर बेकाबू हो गए थे और उन्होंने हरीफ टीम के अहदेदारों पर मुक्के बरसाए थे, इसलिए कि उन्होंने उनके मजहब को लेकर के भी गाली दी थी।
वाक़े के अगले रोज़ खुबैब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी भी मांगी। उनका कहना था कि ग्रेगर की टीम ने उनके मजहब, मुल्क और वालिद से मुताल्लिक़ गलत बातें की थी जिन पर वो मुश्तइल हो गए और जज्बात पर काबू नहीं रख सके, और हमने इस सिलसिले में पूरी तफसीलात आपको दी थी। और 2000 अगर आप इसकी सारी तफसीलात हासिल करना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ और खुबैब क्यों पूरी तरह सुर्खियों में छाए रहे हैं और किस तरह उन्होंने गुस्सा निकाला रिंग में अपने काजर मैकग्रेगर को मारते हुए और उसको हराते हुए, वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। तस्वीरें 2018 के नाम से, अगर खुबैब 2018 इतना ही गूगल पे भी मार लेंगे तो फाइट भी आप लोगों के सामने आ जाएगी, वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी जिसको लेकर के खुबैब जो है पूरी तरह अपना गुस्सा दिखा रहे थे। बैकअप नाज़रीन, ये खुबैब की कुछ तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। अब इन्होंने जो है इस को जो है खैराबाद कह दिया है, अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में अब वो हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने खुद जो है रिटायरमेंट लेने का इस वक्त ऐलान कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन कबल ही, महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया था कि तिरंगा हम लहराएंगे नहीं जब तक कि उनको अपने रियासत का झंडा नहीं मिल जाता। इस बात को लेकर कर जाहिर सी बात है कि हिंदुत्वा और बीजेपी तो नाराज होगी और अलग अलग तरह के उन्होंने बयानबाजियां भी हुई। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर की सुबह भारतीय जनता पार्टी के कई कारकुनों को उस वक्त हिफाजती तहवील में ले लिया जब वो श्रीनगर के तारीखी लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा लहराने के लिए शिमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से यहाँ आ पहुंचे थे। पीर की सुबह जिस वक्त बीजेपी के कारकुन लाल चौक पहुंचे तो इलाके के बाजार बंद थे और वहां मकामी लोगों की तादाद बहुत कम थी। उन्होंने बज़ाहिर लोगों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए ये वक्त चुना था। पुलिस ज़राए ने अपनी कार्रवाई का दिफा करते हुए कहा कि बीजेपी कारकुन मुतालिका हुकाम से पेशगी इजाज़त हासिल किए बगैर लाल चौक पहुंच गए थे। नीज़ हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी जमात के इक़दाम के नतीजे में यहाँ का अमन व सुकून मुतासिर हो। बीजेपी के कारकुन बज़ाहिर PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान के रद्द-ए-अमल में तिरंगा लहराने के लिए लाल चौक आए थे। ताहम इन कारकुनों ने तिरंगा लहराने के लिए उस दिन को चुना है जिस दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत से इल्हाक किया था। महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक कोई झंडा नहीं उठाऊंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलेगा। बीजेपी की कारकुन महबूबा मुफ्ती की इस बयान को तिरंगे की तौहीन और गुस्ताखी से ताबीर करते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। और इसके बाद इसका जवाब भी उन्होंने दिया था कि जिस तरह से एक मासूम लड़की के रेप होने के बाद उसके मुल्जिमों के रिहाई के लिए जिन लोगों ने तिरंगा लहराया था उन्होंने दरअसल तिरंगा की तौहीन की थी, हमने नहीं की थी। महबूबा मुफ्ती ने उसका पलटवार जवाब भी दिया था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और पुतला नजर आतिश किए जाने की बात करते हैं जिसमें मोदी का भी है और यहाँ के बड़े बड़े मालदारों का यानी कि बिजनेस टाइकॉन का। ज़रई क़वानीन के खिलाफ पंजाब में विजय दशमी के मौके पर किसानों के जरिए वज़ीर आज़म मोदी, अडानी और अंबानी के मुजस्समों को नजर आतिश करने के बारे में एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि ये कल पूरे पंजाब में हुआ। यह अफसोसनाक है कि पंजाब के अवाम वज़ीर आज़म के खिलाफ इस कदर नाराज़गी महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मिसाल है और हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा है। वज़ीर आज़म मोदी को फौरी तौर पर किसानों से रब्ता करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने एक अखबार का कटआउट भी शेयर किया अपनी इसके साथ और ये भी बताया कि किस तरह जो है नाजाज लोग इस वक्त यहाँ के बिजनेस टाइकून के साथ और मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फैरोजाबाद से कि वहाँ पर एक बीजेपी लीडर के कत्ल के सिलसिले में कुछ मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, फैरोजाबाद पुलिस ने बीजेपी लीडर के कत्ल की तफसीलात पेश करते हुए शार्प शूटरों और सुपारी देने वालों समेत 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट सचिंद्र पटेल ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात नारखी इलाके में कस्बा नगला पेच में बीजेपी लीडर दयाशंकर गुप्ता का नामालूम लोगों ने गोली मार करके कत्ल कर दिया था। इस मामले में कुछ लोगों को नामजद करते हुए दीगर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने ये बताया कि नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस वाक़े में पुलिस शार्प शूटरों को तलाश कर रही थी। बहरकैफ अब जो पता चला बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद एक अलग ही मामले को ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब पता चला है कि वो ज़मीन का मामला था और उसको जो है सुपारी दे करके उनको मार दिया गया था। नाज़रीन, कुवैत में लगातार फ्रांसीसी मसनूआत का इज्तिमाई बायकाट होता जा रहा है और दुकानों से फ्रांसीसी तमाम अशिया को निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। फ्रांस में इजहार राय की आज़ादी के नाम पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई तौहीन पर अपने खाकों की एक मरतबा फिर तशहीर पर
कुवैत में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कुवैती दुकानदारों ने फ्रांसीसी मसनूआत का इज्तिमाई बायकाट कर दिया है और उन्होंने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर्स में फ्रांसीसी अशिया हटा दी हैं। कुवैत की गैर सरकारी सारिफिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की यूनियन ने जुमा को फ्रांसीसी अशिया के बायकाट के लिए एक बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी किया था, जिसके बाद से बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी मसनूआत दुकानों से हटा ली गई हैं और इस यूनियन में कुवैत की 70 से ज़्यादा तंजीमें शामिल हैं। इसकी अपील पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर से फ्रांसीसी कंपनियों की साख्ता मसनूआत बिलखुसूस बालों और चेहरों के तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती के लिए अशिया को शेल्फों से हटा दिया है, जो ज़्यादा महंगी भी होती हैं और सबसे ज़्यादा मशहूर भी होती हैं और सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस्तेमाल भी करती हैं वहाँ की उन चीज़ों को जो मेकअप में इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो फ्रांस से आती हैं वो चीज़ों पर जो इस वक्त इस मामले को लेकर कि वो दीगर ममालिक में भी ज़ोरों शोरों से फ्रांसीसी तमाम मसनूआत को, तमाम प्रोडक्ट्स को बायकाट करने की अपील की जा रही है। बल्कि जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी बनती है कि अगर हम लोग इसके आदी हैं इस तरह की किसी चीज़ को ख़रीदने की जो मेड इन फ्रांस हो, तो जो है उसको ख़रीदना नहीं चाहिए, इसलिए कि फ्रांस इस वक्त लगातार इस्लाम की भी बदनाम को, इस्लाम को भी निशाना बना रहा है और साथ ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो मुतनाज़ खाके पेश करें उनके खिलाफ कोई भी जो है एक्शन नहीं हो रहा। अब बरखिलाफ इसकी कि जो है मुसलमानों को ही निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और इस्लाम को ही निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है यहाँ के सदर मैक्रून की जानिब से। वैगैब नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।